Hey everyone, welcome to my channel and you are watching Chat Studies. For today's class, we are going to talk on the topic how to deal with logical reasoning section. So this section is comprised of 20% of your whole paper, 20% of your CLAT. Okay, if I personally talk about CLAT. So this is what the weightage of the logical reasoning is, and in a IELTS and other low entrance examination also have a very quite good weightage of logical reasoning, and mostly students get stuck on this topic. So how to start with it? So listen, I personally think that before entering in any examination, one must know syllabus. And for just knowing to syllabus, we must know the sections. हमें section पता रहना चाहिए. Okay, and for section, and for knowing the section, and we need to know the subject. Okay, so personally, if you are going to start with any subject preparation, you should know what the requirement of the section is. तो वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में. सो जो अगर मैं क्लैट की बात करूँ तो जो लॉजिकल रीजनिंग, student mostly get confused among logical reasoning, analytical reasoning and critical reasoning. So for our low entrance examination purpose, the logical reasoning section is divided into two parts. It is divided into two parts. One area is critical reasoning, and another area is analytical reasoning, anat and critical. So they both comprise of logical reasoning in your low exam. Okay, so now what is this? जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है, वो क्रिटिकल रीजनिंग इज रूल बेस्ड, नॉन रूल बेस्ड रीजनिंग. ओके, एंड एनाट जो होती है वो रूल बेस्ड रहती है, रूल बेस्ड. If I give you example, so critical reasoning is comprised of assumption, argument, statement, conclusion, and this is where of syllogisms, coding, decoding, and many more. You know about it. So as we all know, the syllabus of CLAT had been changed. So in CLAT 2020, the core and focused area was of critical reasoning. Critical reasoning को ज़्यादा weightage दिया गया था. So taking that into the granted, we are also just अभी ज़्यादा सभी यही बोल रहे हैं. All the educators and faculties are telling that we should emphasize on critical reasoning for CLAT perspective. But however, अगर you are preparing for 22 and 23, so you should cover the whole सर्कल. ओके, सो यू शुड नॉट लीव कि क्रिटिकल रीजनिंग 80% आ गई थी. सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था 22 के अंदर, 2020 में पजल का, बस एक ही क्वेश्चन आया था. कहाँ से? एनएट से. बाकी पूरा क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड था. हाउएवर हमें पता है कि क्रिटिकल रीजनिंग ज़्यादा आ रही है. बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि हम एनएट को बिल्कुल ही कम्प्लीटली छोड़ देंगे. वी विल लीव. नो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, सो वी आर गोइंग टू कवर होल सर्कल. वी आर नॉट गोइंग टू लीव. ओके, तो अगर हमको क्रिटिकल रीजनिंग में मतलब मास्टरी अचीव करना है, मतलब हाउ टू डील, तो उसके लिए मतलब आपके पास एक ही चीज़ है कि वंस इसकी क्रिटिकल रीजनिंग का जो एक पोर्शन होता है ना, जो एक फोकस्ड एरिया रहता है, इट डिमांड्स वी पीपल टू यूज़ आवर ब्रेन एंड थिंक क्रिटिकली. मतलब थिंकिंग को बस ना एक बार उस पर्सपेक्टिव से सोचना सीख जाएंगे जिस पर्सपेक्टिव से ऑथर ने कुछ लाइंस लिखी है. एंड इफ़ यू जस्ट यूज टू कीप प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली आपसे क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व हो जाएगा. तो वही बात है, क्रिटिकल रीजनिंग का जैसे ही सेक्शन आप करने आते हैं, तो यू नीड टू यूज़ योर ब्रेन अलॉन्ग विथ देयर हैड टू बी अ कोर थिंकिंग कैपेसिटी. और क्रिटिकल थिंकिंग करिए. और वैसे भी अगर व्हेन यू यूज टू प्रैक्टिस अलॉट, practice will definitely give you a different result. So critical reasoning का सेक्शन हमने देख लिया है कि नॉन रूल बेस्ड रहता है, एंड वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, एंड हियर वी नीड टू थिंक क्रिटिकली कैसे सोचना है. क्रिटिकली थिंकिंग का बता देती हूँ मैं. इसको सोचना मतलब डीप और सारे रीजंस के साथ कि वाई सो. वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्रिटिकल रीजनिंग है ना, इतना ज़्यादा मतलब फैला हुआ कंसेप्ट है, इतना ब्रॉडर कंसेप्ट है. यू कैन नॉट थिंक बियॉन्ड इट. इतना मतलब दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक. हाउएवर इन अब्रॉड कंट्रीज दी क्रिटिकल रीजनिंग का पूरे कोर्सेज हो जाते हैं. मतलब इट्स लाइक साउंड लाइक 25,000 एंड यू आर गेटिंग मास्टरीज इन क्रिटिकल रीजनिंग. मतलब आई लाइक इट. हाउएवर हमारे क्लैट केस में सिर्फ बच्चे और टीचर सिर्फ इसलिए पढ़ाते ताकि आपको नंबर मिल जाए. मतलब मेन मोटिव ये रहता है कि क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाए, नहीं. बाकी इसके पीछे का जो मेन आइडिया रहता है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट. ओके, सो नाउ वी विल टॉक इट अबाउट लेटर. एनालिटिकल रीजनिंग, हाउएवर जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम मैथ्स. ये आपको
आई डोंट नो यू नो और नॉट, बाकी लॉजिकल रीजनिंग इज डेरिवेशन फ्रॉम मैथ। तो ये जो एनआईटी आ जाता है ना, एनआईटी थोड़ा मैथ्स का हिस्सा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपनी मैथमेटिकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ जाती है, मैथमेटिकल स्किल्स। ओके, तो ये तो हमने डील कर लिया व्हाट, है ना, व्हाट। अब हम डील करते हैं फ्रॉम वेयर, मतलब कहाँ से पढ़े, फ्रॉम वेयर। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज। ओके, तो सबसे पहले तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए एम के पांडे इज़ बेस्ट, एम के पांडे is best. If you are new learner, new beginner, and of course we all are new learner, कौन बार बार थोड़ी क्लैट देने बैठ रहा है, तो हम आई थिंक CR के लिए तो आप एम के पांडे के लिए जाइए। विली इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड बुक, इधर यू कैन गो फॉर एनी वन ऑफ देम, ओके, डोंट गो फॉर बोथ, और फिर भी अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। और RS अग्रवाल भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि RS अग्रवाल का कौन सा टॉपिक कवर करे और कौन सा नहीं करे, तो RS अग्रवाल की वर्बल रीजनिंग इज़ गुड, वर्बल कर लीजिए, वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग इज कंप्राइज ऑफ यही एनआईटी, थोड़ा एनआईटी का टॉपिक है, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। नॉन वर्बल रीजनिंग में जो RS अग्रवाल की है ना, उसमें थोड़े से आंसर इधर की उधर है, तो वो तो आप ना इधर से ही करिए एम के पांडे से, तो आप ये वर्बल कर लीजिए यहाँ से। और इफ़ यू हैव तो GMAT ऑफिशियल गाइड, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड सोर्सेज, GMAT ऑफिशियल गाइड, और इसे परचेज करने की ज़रूरत नहीं, साउंड लाइक 2500 एंड ऑल, PDF अवेलेबल है, एंड इफ़ यू डोंट हैव सो टेल मी, आई विल शेयर विथ यू, ओके। तो 1 2 3, और हाँ चौथा एक न्यूज़पेपर और ऑल्सो क्वाइट गुड सोर्सेज। कैसे, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं, पैसेज आते हैं, उनके बेसिस पे आप ट्राई करिए कि इस पर्टिकुलर पैसेज का, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का कंक्लूजन क्या है, आप उनकी बेसिस से अपने आप क्वेश्चन फ्रेम करिए, एंड उससे आप कर सकते हैं। तो हमने ये भी देख लिया कि फ्रॉम वेयर। अब हम करते हैं कि हाउ। तो देखिए हाउ का मैंने आपको बता ही दिया है कि ओके, अब हम आ जाते हैं हाउ। सो मोस्टली मतलब एवरीवन हैज़ डाउट कि मतलब क्वेश्चन तो पैसेज बेस्ड आने लग गए ना एग्जाम, इफ़ आई टॉक अबाउट क्लैट पैसेज बेस्ड आने लग गए हैं, लेकिन हम फिर भी जब आई टॉक अबाउट एम के पांडे और RS अग्रवाल, इनमें सारे वन लाइनर ही वैसे आ गया है कि इसका कंक्लूजन बताओ, उसका स्टेटमेंट का कंक्लूजन बताओ, इसका अजम्पशन बताओ। तो हम तो क्वेश्चन तो तुम प्रैक्टिस तो वही कर रहे हो, 1 लाइनर 2 लाइनर। सो लिसन, जो अब पैसेज आते हैं ना, मतलब पैसेज जो बेस्ड आते हैं, सॉरी पैराग्राफ आता है, पैसेज बोल रही हूँ, तो पैराग्राफ बनता ही पैसेज से, पैसेज, ओके। तो मतलब ये नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट एम के पांडे और RS अग्रवाल, तो इनके अंदर ऐसे मैक्सिमम 4 या 5 लाइन के आपको पैसेज रहेगा, उस पर आप सॉल्व कर रहे होंगे अभी, है ना, एट योर प्रेजेंट। तो उन्हीं पैसेज से बन जाता है आपका पूरा के पूरा पैराग्राफ। तो बस ये ऐसे इतना आप लोगों को सोच के नहीं चलना है कि हो पैराग्राफ बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, नो, यू आर हैविंग विद द पैराग्राफ्स। और फिर भी हम पूछते हैं कि कैसे, तो देखिए व्हाट हैपन्स कि ना, जैसे पूरा के पूरा ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये पूरा पैराग्राफ रहेगा, और ना इस पैराग्राफ में से ना कोई सी भी एक लाइन आ जाएगी, ओके, और इस पूरी लाइन में से ना आपसे पूछ लेंगे, यही लाइन यहाँ लिख देंगे और बोलेंगे इस लाइन का अजम्पशन बताओ, है ना। तो बात तो वही हो गई जो हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही वो लोग पूछते हैं, बस बात है ये उन्होंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया उन्होंने, थोड़ा रीडिंग ओरिएंटेड बेस्ड कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर से, पूरे के पूरे पैसेज में से ऐसे 2-3 लाइनें वो निकाल लेते हैं कि इसका अजम्पशन बताओ, इसका कंक्लूजन बताओ, इसका कोर आइडिया बताओ, इसका सेंट्रल आइडिया बताओ। तो हमको इतना सोच के नहीं चलना है, बात यही है कि आप जो छोटे छोटे से पैराग्राफ होते हैं, आप उनके बेसिस से आप स्टडी करेंगे, ओके। सो वी हैड डन टुडे कि कैसा मतलब पढ़ना क्या है, हमने देख लिया कि हमने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, कहाँ से पढ़ना है और कैसे कवर करना है। तो हमको और बाद में आपको मॉक से पता चल ही जाएगा कि पूरा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर कैसा है। सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू डील विद द लॉजिकल सेक्शन। सो आई थिंक कि वंस यू नो द सिलेबस, इट क्वाइट बिकम ईजियर फॉर एवरीवन टू प्रिपेयर, ओके। जब तक आपको पता नहीं रहता है कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन रहता है। बट वंस यू गेट कि हाँ सिलेबस ये है, पढ़ना ऐसे है, कोड एरिया ये है, सो डेफिनेटली यू विड बी लाइक कि हाँ नाउ आई एम रेडी टू प्रिपेयर। मतलब प्रिपेयर होने के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ता है। सो आई थिंक सो कि आपको लॉजिकल रीजनिंग का सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड दिस इज़ कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट्स आए थे बुक्स को लेकर, तो आप CR एम के पांडे से करिए, वर्बल रीजनिंग RS से करिए, एंड GMAT ऑफिशियल गाइड नेट पर देख लीजिए। एंड इफ़ यू डोंट हैव, कमेंट में डाउन, आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइज। एंड न्यूज़पेपर से अपने आप से क्वेश्चन फ्रेम करना देख लीजिए, ओके। सो दिस इज, and if you like my session, so please hit the like button and share it with your friends.
Hope you soon we will meet in next video. Bye.